हेलो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस एक्सपीरियंस। माय नेम इज आकाश एंड आज के हमारे जो गेस्ट है, ही इज सीईओ सीएफओ को-फाउंडर ऑफ एडू इन्फोटेक, द वन मैन आर्मी हिमसेल्फ, ईश्वर हिवाले। प्लीज वेलकम ईश्वर हिवाले। Thank you, Akash, for this lovely felicitation that you have given it. Tell me one thing, what does edu Infotech stand for? Edu Infotech basically online training platform which provide training to students, job, the people who are working in job in different field who want to switch into a different field. It is more into training and placement as well, where after engineering some might got in different field, they want to go into IT, some that kind of training we provided in our institution. What was the mental state? How did you start it? Okay, so since being an engineer and being with Ulasnagar, with all the Sindhis people around me, have that mentality to do something business kind of opportunity. So it all started when I was when I was in 12th standard. There was few teachers who are very good experience in their different field. So there was a professor called as Nilesh Mishra, who wasn't professionally but doctor, but who loved teaching. Okay, so from him I have learned how to express things, how to teach people, how to coordinate with them. As Swami Vivekananda says, youth is our next icon. Okay, so Yeah. okay, so he was more into that, so I learned few things from him. I still remember him. Then there was a teacher called as Vagish, who has great experience in networking and Cisco routers and everything. So I went to his class, learned few things from him, the style and the statement. So somewhere down the line I feel it ki you can do it. You have that teaching ability. Since I was in on 10th standard and 12th standard, I have to teach my friends just before my exams. Okay, so I need to train them, Ishwar, tell me this. So they used to recommend, Arey, you are a good teacher, man, you should try to your own classes, and so that's how things build up. And then I got in touch with those people ki sir ye karna hai, wo karna hai, ye aisa hai. Then there is a professor called Bharat Acharya, okay, who was great in mic. In engineering. We all have heard Yeah, about in him. engineering there is a professor called Bharat Ayatari. He's so good enough in his language like microprocessor and microcontroller, like And then I learned the specification technical skills from him. Ki how did he started? I spoke with him like 15 minutes, not 15 minutes, just 10 minutes, and then I do this, I did engineering, but I have a passion of doing teaching and all stuff. So even I thought ki yaar, theek hai, Monday to Friday I can work, and Saturday Sunday I can build on some teaching kind of stuff. I can train people since I'm good on it, from the 10th 12th, and that's how the journey started. So I started teaching in few classes randomly. Okay. I did not bother about they are paying somewhere, like sir, I did not got money, some went bad, something went good, and that's how it got built up. And that somewhere down the line I built up the Edu Infotech. That helped me to build Edu Infotech to a next level, like Okay. एडू इन्फोटेक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? Okay, so currently what Edu Infotech is, currently we have data science, we have Hadoop, we have Selenium, we are into AWS, Azure is coming into picture, ethical hacking is there, Java is there, Python is there. So these are all different courses. After engineering, people get into what needs to be taken care, कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you have just 1 degree, और कंपनी तो वो मांगती है जो 4 साल में सीखा ही नहीं है. Exactly. So that's a different drawback of our engineering full society, like कि you learn 4 years ED पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब जो कंपनी कभी पूछती ही नहीं कि अरे इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है. BEE पढ़ा, that does not have link to it. See, what I feel is सॉफ्ट स्किल्स को छोड़ के अगर पूरे इंजीनियरिंग का हम लोग समरी निकाल रहे हैं तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वो 4 साल में सीखा हुआ कभी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने लाइफ में. Very true. बस सॉफ्ट स्किल्स को छोड़ के, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स जैसे जो हमको था सेकंड सेम में प्रेजेंटेशन था, देन कम्युनिकेशन स्किल्स था, ये सारे जो चीज़ें हैं वो और वो तुम यूज़ कर सकते थ्रू आउट योर लाइफ.
फिर आप कुछ भी कर रहे हो, बट उसके अलावा इंजीनियरिंग में वो 2 सब्जेक्ट्स छोड़ के जो बाकी 38 सब्जेक्ट्स आते हैं आपको, विद प्रैक्टिकल्स, विदाउट प्रैक्टिकल्स, जो भी हो, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना हम कहीं इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। इससे जो एक्सपीरियंस आता है, उससे हम सीखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अ सर्टेन थिंग। लेकिन वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कभी होता नहीं है ना? That's true, that's true. After engineering, you see people going doing MS, people see doing MBA. मतलब टेक्निकली जो हम लोग 4 साल में सीखते, दे आर लाइक कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये जावा क्या होता है पता ही नहीं है, डेटाबेस किधर से आता है। वो तो जावा, इट वाज लाइक वन सब्जेक्ट राइट, सी प्लस हाँ, प्लस जावा, इट वाज एक स्मॉल सब्जेक्ट, एंड उसके अंदर भी हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि एटलीस्ट कैसे तो भी 40 आ जाए। हाँ, हाँ, समवेयर डाउन द एग्जैक्टली। लाइन वी हैव दैट कि अरे ज़्यादा कोड पढ़ने से भी क्या है, 40 तो आने वाला है, स्कोरिंग तो है ठीक है, बाकी के देख लेंगे कैसे हो जाएगा लाइफ में। बस पास होना है, यही सबका एटीट्यूड वैसे ही रहता है हमेशा। इंजीनियरिंग में मेरा भी वैसे ही था कि भाई बस पास हो जाओ, बाकी अपने को कुछ नहीं करना, अपन देख लेंगे आगे आगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ पास होना है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ईश्वर, आप साथ में एक जॉब भी करते हो राइट, एक 9 to 5 जॉब, एंड देन यू ऑल्सो मैनेज टू हैंडल योर ओन स्टार्टअप। सो हाउ डू यू मैनेज बोथ? क्योंकि देखो, मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में जी रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में लोग पहले जैसे ऑफिस में 8 घंटा 9 घंटा काम करते थे, अब वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। Now corporates are taking advantage of this situation and making us work for around 10 hours, 12 hours, sometimes even 14 hours, है ना? तो वो टाइम मैनेज कैसा होता है, जो एक जॉब भी करना है एंड देन हमको एक स्टार्टअप पे भी काम करना है, और वो भी अच्छे से चलाना भी है, वो हाउ डू यू डू दैट? सो बेसिकली ये हम लोग ऐसे करते हैं कि व्हाट आई डू कि आई डोंट स्लीप 8 hours or 9 hours a day. If you consider my life, I don't sleep 8 hours or 9 hours. I sleep minimum 5 hours. वो होता है ना, हसल रहता है कि नहीं यार लाइफ में ये प्लान है, ये प्लान है, एवरीबडी हैव डिफरेंट प्लान. सो मंडे टू फ्राइडे एज यूजुअल आई डू माई जॉब एंड आई स्पेंड 1 or 2 hours on my startup, taking my team into conference call, telling them you should do this, you should do that, ये हम लोग ये करना है, this is our new project, ये है वो है. सो दैट थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर. एंड सैटरडे संडे तो फुल ऐसा ऑक्यूपाइड रहता है कि बस भाई 24/7 काम करना है. होता है ना 14 hours, somebody said it कि if you are working 14 hours, work on yourself 40, for 40 hours. If you हाँ, want to work for हाँ, somebody for 40 hours, you should work 80 hours on yourself. That's how the entrepreneurship came into picture. तो वो हसलिंग अभी भी चल रहा है कि थिंग्स आर गोइंग ऑन, कि नहीं ये करना है वो करना है. टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज इट, टू रिड्यूस माई स्लीप, टू नॉट गोइंग फॉर पार्टीज, नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स. वो होता है कि 19-20. yeah. And how did you build a team for Edu Info? नो, सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई सेल्फ. मैंने बोला लेट्स स्टार्ट इट. सो मेरी सिस्टर है कज़न, तो मैंने उसको बोला कि शी इज़ इन टू मार्केटिंग. सो मैंने बोला आई एम डूइंग दिस विल यू हेल्प मी टू मार्केटिंग. सो ही टोल्ड मी द फ्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कि अरे यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, तेरे पास ये होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम होनी चाहिए, तेरे पास कंटेंट एडिटर होना चाहिए, सेल्स टीम होनी चाहिए. बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू फ्रॉम बिजनेस फैमिली, ओके, तो मेरे को पता नहीं था कि हाउ बिजनेस वर्क्स, व्हाट आर द एथिक्स. हम लोग सिर्फ हाँ चल लेट्स डू इट. सो शी टोल्ड मी यू वर्क, मेक सम प्लान्स, वर्क ऑन दैट गोल्स, एंड दैट्स हाउ द टीम गॉट बिल्ड अप. ही टोल्ड मी दिस इज़ अ कंटेंट क्रिएटर. फ्रीलांसिंग के लिए हम लोग ने उसको हायर किया. फिर वो चीज़ें थोड़ी अच्छी बिल्डअप हुई, थोड़े फाइनेंसेस ग्रो होने चालू हुए हम लोग के from company point of view. So if that went on, then we had digital marketing team, so then we had sales team for calling and everything, for creating reports and everything कि कितने students है, क्या revenue है, and कौन सा trainer क्या कर रहा है, कहाँ पे stuck है, कौन से student को क्या issues है, invoices point of view. Everything came into, it's like one pages we added into the book, and the book got created, and it's still on by the path of creating. Okay, so is the book finished? अभी तक वो बुक खत्म हो गई है या फिर अभी भी उसका बुक बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है? As somebody says, life is a journey, right? You cannot end it. तो वो अभी भी चल रहा है, एंड इट्स स्टिल वी आर लर्निंग. हम लोग अभी तक 1 साल हुए रहेंगे मार्केट में आके, तो और
थोड़ा और ग्रो अप करना है, चीज़ें बहुत सारी प्लान्ड है, वो सब करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम द सेल्स टीम एंड डिजिटल मार्केटिंग टीम, आई हैव माई ट्रेनर्स टीम. Okay. सो जो ट्रेनर टीम है तो दे आर एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन टू देयर फील्ड. लाइक इफ समबडी इज डूइंग डेटा साइंस basically he's an engineer who has more than 5 or 6 years of experience, and he teaches data science. Same goes with Hadoop, and that's how the team got built up ki chal let's do it. Kuch contacts build हुए. See, Ishwar, what I don't understand about Edu Infotech is, was there any pressure of succeeding? क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हो साथ में, and then जॉब करते करते if you start a project by doing it yourself, and then adding a team, and then making that team work on that particular thing only. तो was there any pressure of succeeding कि नहीं यार, मंथ एंड में मुझे इनके सैलरीज भी करने हैं, इनके पैसे भी देने हैं, एंड देन मुझे मेरे जॉब पे भी फोकस करना है, बिकॉज एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम तो जॉब से ही आएगा जब तक आप पूरी तरह से फ्लरिश नहीं हो जाते एक मार्केट में. प्रेशर ऑफ सक्सीडिंग नहीं था, बट प्रेशर ऑफ डूइंग समथिंग था मेरी टीम के पास, विच आई हैड इट एंड आई पास इन टू माई टीम कि लेट्स डू दिस. इनिशियल फेज वी वर लाइक कि यार कुछ है ही नहीं, खोने के लिए क्या है. तभी तो सब ऐसा फ्री में काम कर रहे थे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट आए छोटा हाँ चल लेट्स डू इट. कुछ मिनिमम कमीशन हम लोग देते थे कि भाई वी डोंट हैव फाइनेंसेस, लेट्स डू. कई बार तो हम लोग ने ऐसा किया कि यू डू इट, विल पे इट 1 month और 2 months लेटर ऑन की, बिकॉज वी वर शॉर्ट ऑफ फंड्स. तो हम लोग ने ऐसी चीज़ें बिल्डअप की. देन प्रेशर व्हेन इट गॉट बिल्डअप की, जहाँ पे टीम बड़ी होती गई और फिर लोगों के एज यू टोल्ड सैलरी मैनेज करना, बाकी की चीज़ें मैनेज करना, टीम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंड वो सब चीज़ें व्हेन इट गॉट एडेड, सो वी वर लाइक नहीं डूड, दिस मंथ दिस शुड बी आवर टारगेट टू टू पे द एक्सपेंसेस. तो इतना तो सेविंग्स होना चाहिए, या फिर इतना एक्सपेंस होने के बाद इतना तो होना ही चाहिए. तो सो माई टीम शुड नॉट अफेक्ट, और उनके जो EMIs है दे शुड नॉट गेट अफेक्टेड टू नेक्स्ट लेवल. बिकॉज इवन समबडी इज वर्किंग फॉर मी, दे आर लाइक लेट्स डू इट फॉर फ्री, बट ही विल नॉट गो टू a grocery shop. अरे he has to pay him money for that, right? So that's how it went on ki we hired people and then trained them to a next level ki we'll do this, we'll do that, and be with us for next 2 years and you will see the progress in yourself. उनको guide करके. और एज आई टोल्ड पहले भी कि मेरे कज़िन ने मेरे को बहुत हेल्प किया, जो मेरी मार्केटिंग वाली कज़िन, शी हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, आई वॉज फ्रॉम कोर टेक्निकल, जस्ट एन इंजीनियरिंग गाय, जहाँ पे उसको 9 to 5 जॉब करना था और बाकी की चीज़ उसको पता नहीं थी कि मार्केटिंग कैसे चलती है. What I have started appreciating about you is the attitude that you have for doing the job, a 9 to 5 job, and also at the same time building a startup. Starting a startup, then building a team, because बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो कि खासकर IT में काम करते हैं और या फिर किसी भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि नहीं आज मंडे टू फ्राइडे काम करना है, देन वीकेंड आराम करना है, कुछ नहीं बस पार्टी करेंगे, आराम करेंगे, ऐश करेंगे, बस. बहुत सारे लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है. बट व्हाट दे मिस इन लाइफ इज, दैट्स व्हाट आई फील कि व्हाट दे मिस इन लाइफ इज जो हसल होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो हमने हमारे 20s में या फिर अर्ली 30s में करना चाहिए. दिस इज द टाइम टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, जो आपको आप शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास कल जॉब ना हो, बिकॉज गिवन द रिसेशन, ये वो सारी चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपका जॉब ना हो कल जाके, बट यू शुड हैव अ सोर्स ऑफ इनकम इफ योर जॉब इज नॉट देयर, राइट? तो लोगों का ये जो एटीट्यूड है दैट आई फील इज गलत, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए यार इंसान के पास, है ना? वेरी ट्रू. एंड if you're building something of your own, I think that is one of the best thing that you can do in your 20s or 30s. आई वुड समराइज कि जो 20s और 30s होंगे, इट्स लाइक मोर इनटू हसल. जैसे जैक मा ने बोला था कि यू डू इट सब डू टिल 40s एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा ये तेरा स्किल्स है, यू दिस योर स्किल्स, यू शुड वर्क ऑन दिस, यू शुड वर्क ऑन दैट. तो अगर इफ़ यू डोंट वर्क फॉर जो नेक्स्ट 5 years 10 years डाउन द लाइन, वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, तो वो एक माइंड सेट हो जाता है. एवरीबडी हैव दैट डिफरेंट माइंड सेट कि नहीं यार छोड़ना, वाई यू वांट टू डू इट, एंड दैट impact somewhere down the line your family, your health, your society,
mental pressure, or if you lost something, like जैसे तूने बोला कि if you lost your job, okay, तो what will happen? So people don't realize that कि अरे ठीक है अभी चल रहा है ना, let's see आगे जाके कैसे होता है क्या होता है. They are into more into that comfort zone. And the worst part was, recent one was the COVID, when the lockdown came and everything. And then जो businessmen थे, even business people don't have their savings into their savings account. And job वाले तो some many people have lost, many friends of mine have lost their jobs. So they were into searching for job, some opportunities and all stuff. Even not just 5 years or 10 years, there were people who are like 15 years or 18 years sending me the resume ki, Ishwar, can you search me a job? And I was like, dude, I don't have a company so big ki I can hire you. And they were having salary lakhs, मतलब 4 लाख 3 लाख ऐसा salary. ग्लोबल रिसेशन इतना है. इफ़ यू कंसिडर इंडिया बिफोर लॉकडाउन, इट वाज लाइक हम लोग ऑलरेडी 10 साल पीछे चले गए व्हाट द करंट सिचुएशन राइट नाउ इज. that might be true actually. लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये जो कंडीशन है अभी, कि अगर एक इंसान अगर एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, अगर मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एंड देन आई गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, या फिर मेरी जॉब चली जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, and then I am not able to get myself a new company to work in. So is it not a defeat of our education system? Because अगर हमारा education system इतना efficient होता कि हमको हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको फेस करने का अगर वो मोटिवेशन नहीं देता, फिर सिखाता नहीं है. Very true, very true. Education system, the whole actually the problem with India is we have multiple boards. We have Delhi board, Bihar, every state have their different board, and they have every different mark skills, you can say. कि some have percentile, some have percentage, and they have different concepts कि 10th के बाद ये होना चाहिए. Subjects भी अलग होते हैं कई बार तो, कि somebody have bio, somebody don't, CBSE, ICSE, state board. तो वो सब चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया शुड वर्क ऑन. और जो स्कूलिंग जो अपना होता है ना, दैट स्कूलिंग में भी इतना कुछ अच्छा, यू कैन से इट शुड बी अपग्रेडेड टू नेक्स्ट लेवल. हम लोग वही पढ़ते आ रहे जो हम लोग मॉम डैड पढ़ रहे हैं. तो वहाँ पे कहीं तो भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी कैसे लाना है, मेंटल पीस कैसे लाना है लाइफ में, मेडिटेशन पे काम करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहिए. विद स्कूल हैव टॉट इट. स्पोर्ट्स में होने चाहिए हम लोग कुछ. Schools might teach you financial ki if you have financial stability, how to do it and how the thing should work. And how income tax works. How income tax works. टैक्सेशन कैसे काम करता है, लोग अपनी सैलरी कैसे सेव करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो फैक्टरिंग होती है जब आप बड़े हो जाते हो. ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती ना. ये सारी चीज़ें हमको खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है. और वो फिगर आउट करते करते आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे अभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, दे आई डोंट हैव एनी आइडिया कि अरे टैक्सेशन क्या होता है, कहाँ पे टैक्स पे करना है. इफ़ समबडी इज इन्वेंट टू स्टॉक्स, द अदर गाय विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. उसको कुछ पता नहीं है स्टॉक्स में क्या है. इफ़ समबडी इज इनटू SIP, अच्छा चल ही इज डूइंग SIP, आई विल ऑल्सो डू SIP. दे डोंट हैव प्रायोरिटी सेट कि अरे क्या होना चाहिए. एंड दे लर्न इट फ्रॉम, अच्छा इसने ये किया, ओके लेट्स डू दिस. ये मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि आई विल फ्रेम इट इनटू हिंदी, कि अगर सामने वाले ने चाय का दुकान डाला है ना, तो इंडिया में क्या होता है, उसके बाद उसके सामने वाला है ना, सपोज किसी ने चाय का दुकान डाला तो उसका सामने वाला भी चाय का ही दुकान डालेगा. ही विल नॉट थिंक कि अरे मैं दूध का डालूँ तो दोनों का बिजनेस हो. ही विल हैव, अरे उसने चाय का डाला, इसका 20,000 हो रहा है, मेरा भी 20,000 होगा. Okay, I have seen people who have just one piece of, they have done graduation from good colleges, good MBA colleges and all. But if you tell them कि अरे you can do this presentation or you can go and pitch this guy and get the deal cracked, he will be like, Ishwar, I don't know. Ishwar, how to do it? You can help me with that. वो सबसे बेसिक चीज़ होती है ना. आई फील किसी भी ग्रेजुएशन में, फिर किसी भी डिग्री में उसके साथ आनी चाहिए सबको. अगर आप इंजीनियरिंग सीखते हो या फिर आप कोई भी चीज़ सीखते हो, तो उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स आनी ही चाहिए सबको. अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू,
then I think you need to get yourself educated again. क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो वो एक लाइफ स्किल है, लाइफ हैक है, वो नेसेसरी चीज़ है वो। आपको नेटवर्किंग करते आना चाहिए, आपको बात करते आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, है ना, वो करते हुए भी। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस फटाक से नहीं है, बट इफ़ यू डू कंसिस्टेंटली, बट वो होना चाहिए कि नहीं यार, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। और वो स्कूलिंग में थोड़ा बिल्डअप होनी चाहिए थी चीज़ें अपनी। व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब आई वुड गिव एन एग्जांपल कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड था, मेरे बाजू में एक बंदा था, ही वाज लाइक सुपर डुपर। हम लोग फर्स्ट डे मिले एंड ही वाज लाइक, डूड आई गॉट सो मच परसेंटेज, आई एम स्कॉलर, मैं ये किया वो किया। And the moment the lecture starts, physics lecture starts, and the guy says everything in English, and he's like, क्या बोल रहा है? What did he say? Next 6 months, मतलब वो हर लेक्चर के बाद मेरे को 5-15 मिनट रुकाता था, and he used to tell me, अरे ह्याच्यामध्ये हे सांग ना, ह्याच्यामध्ये हे सांग ना. This is very big issue when it comes to every state, like you know, if I consider Maharashtra, तो वो होनी चाहिए थी कि अरे यार एटलीस्ट, मतलब उसको ही माइट गॉन टू नेक्स्ट लेवल अगर उसको कम्युनिकेशन बैरियर ना होता तो। ये ऐसी चीज़ है जिसपे आई थिंक सबने काम करना चाहिए, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे, अपने स्पीकिंग स्टाइल पे। जैसे मैं पहले बहुत स्टैमर करता था बात करते वक्त, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग स्लोली, धीरे धीरे बात करना। मैं एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो मैं बहुत फास्ट बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा आई stammer नो करता आई हूँ। नो, हम लोग तो दोनों ने कॉलेज एक साथ ही है। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें अपने आप में फ्लॉज ढूंढ के इम्प्रूव करना, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू टू योरसेल्फ, है ना। अपने ही फ्लॉज अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। दैट्स ट्रू। और वहाँ पे वो चीज़ें आती है कि यू शुड हैव दैट सेल्फ रिकग्निशन कि यार मेरा ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, ओके आई शुड वर्क ऑन दिस पार्ट। ओके आई एम गुड एट लॉजिक्स बट आई एम नॉट गुड एट इमोशंस. I am not good at emotions when it comes to making decisions, when it comes to working on some finances. If I am good at finances, I am not good at that. You should, ये understanding होनी चाहिए. स्पीकिंग अबाउट मेंटल इश्यूज, ईश्वर, ये जो मेंटल इश्यूज हो रहे हैं आजकल लोगों में, जैसे डिप्रेशन हो गया, या फिर अभी जैसे लॉकडाउन में लोग जैसे आइसोलेट हो गए थे, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी इस चीज़ से कोप अप करने के लिए, है ना, आइसोलेशन की वजह से। क्योंकि आजकल के लोगों को, मतलब एटलीस्ट कोविड के पहले आइसोलेशन की किसी को आदत ही नहीं थी। आइसोलेशन एक्चुअल में कैसा होता है, क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं, दूर दूर तक किसी से कोई रिलेशन नहीं था आइसोलेशन का। एंड देन जब कोविड हिट हुआ, वी स्टार्टेड लिविंग, वी स्टार्टेड स्टेइंग फार फ्रॉम ईच अदर, हम डिस्टेंस मेंटेन करते, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे। तो वो सारी चीज़ें ना, आई थिंक सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी हुई है। बिकॉज हमको लगता है कि अगर हम किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं तो यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये तो सिर्फ ये करता है, तो सिर्फ वो करता है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग हमेशा देखते हैं, तो लोग अपना गुड साइड दिखाते हैं, लोग अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं लाइफ का। बाकी बैकग्राउंड में पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, Very true. है ना। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल। जैसे आकाश, when you started, the point is कि लोग सिर्फ अच्छा मोमेंट दिखाते हैं, ओके। जो सोशल मीडिया, इट्स कम्प्लीटली फेक, मैं तो ये बोलूँगा राइट नाउ, ओके। द पीपल विल नेवर शो यू द डार्कनेस, नेवर शो यू द डार्कनेस। मतलब वो 24 घंटे रोता भी रहेगा ना, बट ही विल मेक ए क्लिप ऑफ 1 minute or 2 minute ऑफ, अरे ये आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, एंड उसका जो सराउंडिंग रहेगा, पीपल विल एज्यूम कि अरे इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो नहीं चल, इसका कैसे चल रहा है, ये कैसे आगे जा रहा है, मतलब। एंड वो देख के पीपल आर लाइक कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। एंड दे स्टार्टेड एंटीसिपेटिंग कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मेरे लाइफ में बहुत ये है वो है। इवन द स्ट्रगल इज़ देयर, बट यू नीड टू कम अप विद दैट। स्ट्रगल तो सबके जिंदगी में होता है, ऐसा नहीं है कि जो आपको बेटर साइड ऑफ देयर लाइफ दिखा रहे हैं वो उन लोग की जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है। इवन द अंबानी हैव देयर ओन स्ट्रगल। हाँ ऑब्वियसली, हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे वो, बट इट्स देयर, है ना, द स्ट्रगल इज देयर।
अपने इशू, अरे पानी नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर पे जाना है. डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन स्ट्रगल तो सबकी जिंदगी में होता है. और द मेंटल पावर जो होता है लाइफ में, आई विल टेल कि जो फॉर यूथ आई कैन टेल कि जो मेंटल पीस है ना, यू शुड डू विथ मेडिटेशन. यू शुड इंटीग्रेट मेडिटेशन इन योर लाइफ. और ड्यू टू सोशल मीडिया क्या हो रहा है नाउ, थिंग्स आर गेटिंग मोर इवॉल्व. मतलब वी आर ग्लैड कि हम लोग ने जब इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था तभी सोशल मीडिया नहीं था. कि नाउ if you consider teenagers, then they have multiple options. If they consider 20 minutes भी उन लोग हर एक application को देना, the day is gone. Yeah. And what they have achieved in that day is zero. Productivity is zero. When it comes to us, अपने time जो 90s के तो they don't have that opportunity. मतलब वो उतना ये flawless नहीं था कि नहीं यार मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा है. वेरी लिमिटेड ऑप्शंस. एक मैसेज होता था या देन व्हाट्सएप केम इनटू पिक्चर. एंड नाउ जो 3 साल में जो चेंज हुआ है ना, दैट इज़ वेरी ड्रास्टिक चेंज दैट हैड हैपन. इवन इफ हिज फ्रेंड और एनीबडी और जो कुछ भी है रिलेटिव हो, जो कुछ भी, दे स्टार्ट कंपेयरिंग. दे विल नॉट कंसिडर कि अच्छा इसने ना 4 साल पहले चालू किया तो अभी ये यहाँ पे पहुँचा है. ये लोग नहीं समझते. ये लोग नहीं समझते. और द पॉइंट इज कि ही अगर उसे 2 मिनट को वीडियो बनाने को 12 घंटे लग रहे कंटेंट डेवलप करने का, तो लोग वो 12 आवर्स कैलकुलेट नहीं करते कि हाँ इसने 12 आवर्स मेहनत की है फॉर दिस 20 मिनट्स ऑफ वीडियो और 15 मिनट्स ऑफ वीडियो. सो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ में. पहले हम लोग बात करते थे, नाउ पीपल टेक्स्ट कि सामने वाला रिप्लाई करे नहीं के लिए, आई डोंट बॉदर इट. मेरे को उसको फेस नहीं करना है. हाँ, मैंने तो टेक्स्ट कर दिया ना, मैंने मेरा काम कर दिया है. मैंने मेरा काम कर दिया है, अभी उसका प्रायोरिटी है, देखना नहीं देखना क्या चीज़ें हैं. और वो चीज़ें जो टीनेजर में हो रही है, और उसकी वजह से इन्फ्लुएंस बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहा है इंडिया में. इवन द गर्ल और बॉय शुड रियलाइज कि वॉट वेंट रॉन्ग इन देयर लाइफ. दैट इज़ द कोर ऑफ इट. कि इफ़ यू डोंट कंसिडर, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, तो हाउ डू यू रेक्टिफाई इट. या करेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी. इट इज नेसेसरी, है ना. दैट इज़ ट्रू. मतलब अगर वो चीज़ें हो रही हैं तभी लाइफ स्मूथ होगी नेक्स्ट 15 या 20 ईयर्स डाउन द लाइन. नहीं तो नाउ जो डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल है मेंटल, इफ़ यू कंसिडर ग्राफ फ्रॉम लास्ट 2 years, it's gone up to next level. मतलब people are isolated, they don't talk to each other and they are, और लोग assume ज़्यादा करते हैं, और assume के चक्कर में ना उन लोग कहीं तो भी उनका सेल्फ बिलीफ छोड़ देते हैं. तो ईश्वर, व्हाट आई फील इज आज के डे एंड एज में जहाँ पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, लोग आइसोलेटेड फील करते हैं, लोग डिप्रेस्ड होते हैं, और वैसे ही टाइम में जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. आप एक जॉब कर रहे हो कॉर्पोरेट में, और आप एक खुद का स्टार्टअप भी बिल्ड कर रहे हो. यू हैव स्टार्टेड योर ओन thing and you have built it, you have built a team to maintain that, and you are paying salaries of all your employees, है ना. तो ये सारी चीजें करने में मेंटल टफनेस कितना ज़्यादा चाहिए. Because see, I agree that it cannot be quantified. It cannot be quantified. उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मेंटल टफनेस इसका कितना इम्पोर्टेंस है. हाउ डू यू कीप योर मेंटालिटी दैट टफ. आई हैव मेंटल प्रेशर तो बहुत आता है. मतलब एक 0.1% का भी चेंज हो तो लाइफ ऐसा हो जाता है कि यू नीड टू पे योर सैलरीज, यू नीड टू पे योर डेब्ट्स, बाकी की चीज़ें मैनेज करना. बट आई बिलीव कि यू शुड वर्क ऑन दोज थिंग्स जहाँ पे तेरे को लगता है कि नहीं ये चीज़ें मेरे 5 साल बाद चेंज हो सकती है. यू डोंट स्पेंड योर टाइम, समबडी सेज वेयर द टाइम गोज द मनी फ्लोज एंड द एनर्जी गोज. आई लाइक दिस. ये मैं नोट करके रखूँगा मेरे डेस्क पे. हाँ, तो ये चीज़ें ना लोग समझ नहीं पाते. दे स्टार्ट
मतलब दे विल फाइट विथ एवरी नॉनसेंस एक्टिविटी दैट दे डोंट वांटेड टू. और वो बिल्डअप करने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत होना चाहिए. कि आई डू मेडिटेशन, मोस्टली आई डू मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब में थोड़ा बिलीव करता हूँ, तो मैं ये थोड़ा फॉलो करता हूँ. तो थोड़ी अच्छी चीज़ें भी होती है कि यू नो यू शुड कीप योर माइंड कूल, यू शुड कीप योर सेल्फ साइलेंट. पीपल आर देयर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तुमको ड्रैग करेंगे कि तेरे को किसने बोला था करने के लिए. इवन क्लोज रिलेटिव्स, फर्स्ट रिलेटिव्स, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स दिले फालतू आहे तो, काय काम नाही करत बरोबरचा. वॉट जनरली मराठी बोला रे, काय काम नाही करत तो, बरोबर नाही आहे तो. इवन द गाय इज डूइंग हिज बेस्ट, चीज़ें हो नहीं रही है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, स्टिल पीपल विल ड्रैग यू टू नेक्स्ट लेवल. और वहाँ पे तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी बहुत होनी चाहिए कि इफ़ समबडी इज टेलिंग समथिंग, यू नो नीड टू वरी ऑन दैट कि हाँ उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला है, बोला ख़त्म, चीज़ें छोड़ के यू शुड गो बैक टू योर ट्रैक. यू नो व्हाट यू आर. How much do you have to believe in an idea to start working on it and making it successful? 100%, 101% you should believe on yourself and your idea, then only it will work. Otherwise it don't work. And how does your belief system work? My belief system works, it's very confidential, मैं रिवील नहीं करूँगा, बट जनरली ये ऐसे काम करता है कि यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू बिलीव ऑन योर स्किल्स, यू शुड बिलीव जो कुछ भी काम. इफ़ यू कंसिडर ताजमहल ऐसे नहीं बना, इट समबडी क्रिएटेड ऑन पेपर. उसने क्रिएटिविटी लगाई, अपनी दिमाग दौड़ाया, ही क्रिएटेड समथिंग ऑन पेपर एंड देन ही क्रिएटेड लाइफ. आगरा में बैठ के उसने खुद ने बनाया कि यहाँ से मेरा ये आना चाहिए, व्हाट यू कॉल स्टोन्स आने चाहिए, ये एंटर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे लेक होना चाहिए, ऑल स्टफ. वो पहले इमेजिनरी बनाया एंड देन इट गॉट क्रिएटेड ऑन पेपर. सो इफ थिंग्स शुड बी ऑन पेपर, अगर तुम आई डू इट नॉट एवरी डे, बट when the day I do it, the day is awesome. Okay, what I do, and I tell everybody you should do it. You should note down 3 things that you should do daily. मतलब ये आज का मेरा प्रोडक्टिविटी का टास्क है. To do list basically. To do list you can say कि ये 3 चीज़ें मेरे को ख़त्म करनी है कैसे भी करके. No matter what, at what time you sleep, what time you get up, तुम कैसे टाइम निकालते हो, इट डज नॉट मैटर, बट ये चीज़ें मेरी ख़त्म होनी चाहिए एंड ऑफ द डे. द डे आई डू इट माई डे इज़ ग्रेट, द डे आई डोंट डू इट माई डे इज़ वेरी हॉरिबल. ओके, तो बिलीव सिस्टम्स तो होना चाहिए कि यू शुड कंप्लीटली बिलीव ऑन योर सेल्फ कि वॉट यू आर वर्किंग, वॉट योर स्किल सेट इज़ एंड हाउ यू वॉन्ट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, एंड यू शुड फॉलो योर मेंटर. ओके, सो people have different mentors in their life. Okay, so somebody might have Jay Shetty, somebody might have Beer Biceps, somebody might have Gary Vee. Belief system and hard works. Okay, Kobe, I strongly follow Kobe Bryant. Okay, he was great at doing things. मतलब इतना hard work, इतना चीज़ें करना, विच हैव माम्बा मेंटालिटी वाले, इफ़ यू कंसिडर इट, ही वॉज ग्रेट. मतलब उसके तुम वीडियोज देखो, ही नीड टू गेट अप एट 3 AM in the morning and do basketball. इवन ही मतलब पहले ही वो इतना बड़ा चैम्प हो गया भाई. वो होता है यार, वो बिलीव होता है कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू अचीव इट, आई वॉन्ट टू गो विथ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू इट. ऐसी चैंपियंस बनते हैं ना. सुबह 3 बजे जब सब लोग सो रहे हो और आपको उठ के अगर आपको अपने स्किल पे, अपने क्राफ्ट पे काम करना है, तो दैट्स व्हाट मेक्स यू चैंपियन ना. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और वो उतना होना भी चाहिए तुम कि तुम बस बैठ के अरे ये नहीं हो रहा है यार, ये नहीं हो रहा है. इफ समबडी सेज नहीं हो रहा है, देयर इज अ रीजन, राइट? यू नीड टू वर्क ऑन दैट रीजन. इन स्पाइट ऑफ टेलिंग कि अरे दिस इज नॉट वर्किंग एंड टेलिंग दिस वन स्टोरी टू 50 पीपल कि अरे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू फाइंड आउट द सोल्यूशन. यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ. Nobody is going to help you. You are the creator and destroyer of your own life. Okay, so if it is going good,
it's because of you. If it is going bad, it's because of you. So make sure you should do good things than bad things. And if things are not working, you should make it, understand it, acknowledge it, and then work on it. बिलीव तो होना चाहिए. एवरीथिंग यू डू यू शुड हैव दैट बिलीव कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा ही बोलते हैं ना, बिलीविंग इन समथिंग इज हाफ वे डन. वेरी आप एक चीज पे बिलीव करो, यू आर हाफ वे देयर ऑलरेडी. और फिर आपको तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत करनी है एंड देन यू विल बी देयर. very true man. So Ishwar, we'll wrap this up. Thank you for being a part of our podcast, and thank you for giving us your time on the day of Holi. Thank you Akash. Do you have any closing thoughts? Thank you Akash for that, but I want to sum up this podcast into few things. One is success, one is hard work. I want to give a message to all the teenagers and youth as well ki you should work on your hard work, skills, whatever skills that you wanted, and you should have that plan in your mind. If plan is not there, your life is going to be mess somewhere down the line. Okay, and try to avoid much more use social media as your representer. People should see, okay, this is social media, okay, this guy does this. Apart from posting your good thoughts, you should put your good habits as well and your drawbacks as well कि अच्छा दिस वॉज माई डाउनफॉल, तो मैंने ये सब चीज़ें की. आई रिमेंबर वन स्टोरी ऑफ माई लाइफ जहाँ पे आई वॉज कम्प्लीटली मेस. मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. स्टार्टअप मैंने चालू कर दिया था और पैसे नहीं थे. फ्रेंड ऑफ माइन उसने फ़ोन किया कि ईश्वर मेरा एक फ्रेंड है, ही वॉन्ट्स टू गेट एन आइडिया ऑफ इट, कैन यू हेल्प हिम. आई वॉज लाइक कि ठीक है, उसको कैन यू हेल्प हिम, बोला लेट्स डू इट, पैच हिम द कॉल. उसने पैच किया एंड ही टोल्ड कि अरे ऐसा आई वांट टू डू AWS एंड एवरीथिंग एंड विल यू हेल्प मी. मैं ठीक है, लेट्स डू इट. द मोमेंट आई स्टार्टेड द क्लास, उसने 4 फ्रेंड्स को बताया. और अ टीम ऑफ 5, मेरे पास एट ए टाइम 5 स्टूडेंट हो गए ऑन वन गो विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days एंड विदाउट एनी पब्लिसिटी. और जहाँ पे मैंने होप्स छोड़ दिए थे, और वो फ़ोन मैंने ऐसे उठाया था कि मैं पूरा सो गया था. मतलब मैं 6-6:30 बजे सोया था और सुबह 11 बजे उसने फ़ोन किया और आई वाज लाइक हाँ बोल क्या हुआ, ऐसा. बिकॉज आई वॉज इन टू दैट डिप्रेशन कि यार नहीं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, ये नहीं हो रहा है. तो यू नेवर नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, सो यू शुड कीप हसलिंग इट. एंड दैट 5 स्टूडेंट्स मेक मेरी जो दैट 5 स्टूडेंट हैव टेकन द क्लासेस टू अ नेक्स्ट लेवल कि जहाँ पे उन्होंने खुद ने अपने फ्रेंड्स को बताया and they brought 50-20 students like, and now it's like still growing it. So you never know what happens next, but you should be ready for your opportunity. Yeah, always grab that opportunity that comes in, na? Okay, so thank you Ishwar. We'll end this podcast. Thank you for giving us your time, much appreciated. Thank you Akash, thank you. It was great talking to you. I think we should do much more podcast on this. Yeah, have same a great here. year ahead.